My name is Faral Chaudhary, and I'm currently working as the General Secretary at the Pakistan Law Student Association. So, before any further delay, since the speaker has joined us, first of all, I would request anyone to please comply with the rules and regulations that has been shared with all of them. आप लोगों ने अपना mic unmute नहीं करना और अपना camera भी off रखना है. The speaker has joined us, and before the host introduces our esteemed speaker for today, I would like to give a very brief introduction of the Pakistan Law Student Association. So basically, Pakistan Law Student Association has been working since years to provide opportunities to the student from all across Pakistan, from organizing several virtual activities and competitions. We have, mashallah, expanded to physical events. हमारा स्टार्ट पहले virtual से हुआ था और अब हमने पाकिस्तान के हर एक चैप्टर में जो हमारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड है उनमें हमने फिजिकल इवेंट्स भी करवाए हैं जिसमें हमारा कंपटीशन आर्टिकल राइटिंग भी होता है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, इवन मॉक भी होते हैं. और अभी हमने रिसेंटली HRCP के साथ और इस तरह के स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक फोस्पा एंड FTO वालों के साथ भी हम सेशंस कंडक्ट करवाते रहते हैं जो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. So that's it for PLSA. It works basically for the betterment of the law students and spreading opportunities to the students all over the Pakistan. So that's why we again welcome you to the Criminal Law 7-day virtual course. So over to Aliba. Aliba, kindly take over the session. Assalamualaikum everyone. So first of all, a very warm welcome to all of participants. I am Aliba Tariq Awan, Joint Secretary of Pakistan Law Student Association and performing the duties of moderation for today's session. So our topic for today's class is Criminal Law Foundation and Digital Orientation. It is my privilege to introduce our distinguished speaker for day one, Mr. Osama bin Salam. He is a renowned legal practitioner since 2015 with extensive experience in both criminal and civil law. Alongside legal practice, he has made notable contribution in academia, teaching at top-tier universities and colleges. He is also the founder of Lawyer Academy Pakistan, through which he continues to impart legal education to students across the globe, and we are honored to have you, sir, with us. So, without further delay, I would like to respectfully invite our honorable speaker, Mr. Osama bin Salam, to begin today's session. Over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? Allah ka shukr, sir. Okay, thank you so much. So I think I am audible. First of all, thank you so much for the invitation. और आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो 3-4 चीज़ों पर हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान. इसके अलावा हमने कुछ ओवरव्यू देखना है CRPC, QS और PPC का, और इसके अलावा कुछ हम बात करेंगे कि क्रिमिनल लॉज बनाए क्यों जाते हैं. ठीक है, तो इन दो चीज़ों को हम आगे लेकर चलते हैं. और लास्टली, बल्कि वो सबसे पहले होना चाहिए था कि व्हाट इज मेंस रिया एंड एक्ट्स रिया. So first of all, we will talk about the criminal justice system in Pakistan. अच्छा, अब ये criminal justice system क्या है और ये मतलब क्यों बनाया जाता है? So that is very simple. आप में से अक्सर लोगों को ये definitely पता होगा कि कोई भी जब स्टेट बनती है तो वहाँ पर सिटीजन्स होते हैं और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये सारे के सारे लॉज और रूल्स और ये रेगुलेशंस बनाई जाती हैं. अब बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसलिए डिस्टिंक्टिव है फ्रॉम द सिविल लॉ या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट से, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे हमेशा जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो दैट इज बेसिकली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पब्लिक राइट. तो जहाँ पर हम सिविल लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि वो एक सिंगल पर्सन का इंडिविजुअल राइट होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आप देखते हैं तो वहां पर वही बंदा केस फाइल कर सकता है जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच हुआ है. या फिर अगर आप टॉर्ट की बात करेंगे तो वही बंदा सिर्फ केस फाइल करेगा या वही प्लेंटिफ बन सकता है कि जिसके अगेंस्ट कोई टॉर्चुअस एक्ट कमिट हुआ है. अब जब हम बात करते हैं क्राइम की, तो क्राइम बेसिकली क्या है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पब्लिक राइट. इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर केसेस में आप टीवी पर भी सुनते हैं कि पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया. अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है और अगर कोई क्राइम कमिट हो जाता है
तो एनी पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी ही कैन गो टू द पुलिस एंड लॉन्च एन FIR। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लॉजिंग ऑफ FIR से स्टार्ट हो जाता है कि द मोमेंट यू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो FIR दर्ज करेंगे और उसके बाद पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है दैट विल कम इनटू द एक्शन। अब यहाँ से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट होता है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स इसमें कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पुलिस की। पुलिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास प्रोसिक्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास कोर्ट सिस्टम है, ये इसका थर्ड पार्ट है। और मैं आप लोगों से मीनवाइल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अगर आप लोग पेपर्स और पेन्स अगर पास रख लें और इन चीजों को साथ साथ नोट करते रहें तो दैट वुड बी बेटर, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, थर्ड पर हमारे पास आ जाती है कोर्ट्स, फोर्थ पर हमारे पास आ जाती है प्रिजन्स और करेक्शंस, और लास्ट में हमारे पास आते हैं प्रोबेशंस एंड पैरोल्स। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि फ्रॉम द मोमेंट एन FIR हैज बीन लॉन्च्ड, उसके बाद फिर क्या होगा कि हम प्रोसिक्यूशन उसमें एविडेंस इकट्ठा करेगी, पुलिस एविडेंस इकट्ठा करती है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद वो केस सारा आपका कोर्ट में चला जाएगा। उसके बाद फिर वो कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गई। नंबर 4 पर फिर अगर कोई पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी जाती है, कन्विक्शन हो जाती है, तो डेफिनेटली इम्प्रिजनमेंट होती है क्रिमिनल लॉज में, या फाइन्स होते हैं। तो हम इम्प्रिजनमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि इम्प्रिजनमेंट हो गई, और फिर उसके बाद हम प्रोबेशन या पैरोल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरीके से ये इनिशिएट होता है। तो वैसे तो जो थर्ड डे का आपका टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो इसको हम सिंपल थोड़ा सा देख लेते हैं कि 154 सेक्शन है CRPC का, कि जिसके तहत FIR लॉन्च की जाती है। अब FIR बेसिकली क्या है? जब आप 154 पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी बंदा वो क्या करेगा कि जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो चुका है। अब ऑफेंसेस दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ CRPC, एक कॉग्निजेबल है और एक नॉन कॉग्निजेबल है। तो आपने हमेशा दो चीजें याद रखनी है। एक चीज तो ये कि FIR हमेशा होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, CRPC का स्केड्यूल 2 आपको ये बताएगा। ठीक है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर 8 कॉलम्स हैं, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं कि कौन कंपाउंडेबल है ऑफेंस, कौन सा नहीं है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। इसी तरीके से बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायल कहाँ पर होगा, ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके अलावा समन केस है या वारंट केस है। तो ये सारी डिटेल्स आपको CRPC स्केड्यूल 2 में मिल जाएंगी। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, या जैसे आप अभी इनिशियल लेवल पर हैं, तो इसमें इज देयर अ क्वेश्चन? ओके, सॉरी, आई विल कंटिन्यू। तो उसमें फिर आपको ये स्केड्यूल 2 पहले से ही देख लेना चाहिए कि हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर्स होंगे या नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब FIR होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में। कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? कॉग्निजेंस का मतलब, आप सिंपलर वर्ड्स में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो दैट वुड मीन नोटिस लेना किसी चीज का। ठीक है, यानी कि कॉग्निजेबल वो चीज है कि जिसका कोई भी अथॉरिटी डायरेक्टली नोटिस ले सकती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में मतलब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप कोर्ट में नहीं जा रहे, जो कि एक्चुअली डिटरमिन करेगी कि किसी ने क्राइम किया है या नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो पुलिस क्या है, वो एक स्टेट फंक्शनरी है, स्टेट अथॉरिटी को लेकर वो चलती है। तो इस वजह से आप पुलिस के पास जाएंगे और वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगी कि अच्छा, हमारे नोटिस में आ गया कि ये ऑफेंस कमिट हो चुका है। तो उसके हवाले से FIR लॉन्च की और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अब वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि प्रैक्टिकली हम डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं, दो चीजें जो सेकंड लिम है मेरे इस बात का, वो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कब कर सकती है और कब नहीं कर सकती। अब जहां पर FIR लॉन्च हो गई तो पुलिस इज बाउंड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर पुलिस बैठ नहीं सकती, पुलिस रुक नहीं सकती, द पुलिस विल बी ड्यूटी बाउंड। अब इसी तरीके से एक बहुत गलत प्रैक्टिस की जाती है कि जब FIR लॉन्च नहीं हुई तो पुलिस फिर भी क्या करती है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तो दैट इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। बीइंग लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इसको हम टू फोल्ड इसी तरीके से देखेंगे। एफआईआर नहीं हुई तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती, किसी को गिरफ्तार करना उठाना, तो वो एक गलत इस्तेमाल है पुलिस पावर का। और इसी तरीके से अगर एफआईआर लॉन्च हो गई, द पुलिस शेल इन्वेस्टिगेट, अगर वो नहीं करती तो फिर उनके पार्ट के ऊपर वो रॉन्गफुल ओमिशन है। उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो आप थर्ड डे में जाकर कंप्लीटली देखेंगे। तो उसमें फिर बेसिकली अरेस्ट होता है, अरेस्ट हो सकता है। अरेस्ट से पहले पुलिस जाती है मौके के ऊपर, लोगों की स्टेटमेंट्स लेती है। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेक्शंस में जो स्पेसिफाई कर देता हूँ, 161 है, 164 है, 167 है रिमांड। फिर उसके बाद 4 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं इसमें। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर 173 की रिपोर्ट आ जाती है, जिसको हम नॉर्मली चालान कहते हैं। तो चालान इसको कब तब कहते हैं कि जब जहां पर पुलिस ने अपनी फाइंडिंग दे दी कि भाई ये जो बंदा है इसने ये काम किया है, देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस, ठीक है, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड वी हैव फाउंड दैट पर्सन अ गिल्टी, तो उसके बाद फिर वो उसको चालान कर देंगे। तो इस तरीके से ये पुलिस का रोल यहीं तक होता है कि उन्होंने क्या करना है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद 173 की रिपोर्ट या चालान बनाकर उसको दे देना है। तो अगर पुलिस लेट से फाइंड आउट ये करती है या उसकी पुलिस की कंक्लूजन ये है एट द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि वी हैव नॉट फाउंड दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड पर्सन एज अ गिल्टी पर्सन, तो फिर हम उसको चालान नहीं कहेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज 173 की रिपोर्ट। सो दैट्स दैट डिस्टिंक्शन। अच्छा, उसके बाद अब ये होती है इन्वेस्टिगेशन स्टेज, इसको हम बोलते हैं। जो कि क्रिमिनल केस है उसकी 3 स्टेजेस होती है। एक इन्वेस्टिगेशन है, एक इंक्वायरी है और तीसरे नंबर पर आकर ट्रायल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। 173 की रिपोर्ट का मकसद ही यही है, या फिर वो इस चीज को सिग्निफाई करती है, पॉइंट आउट करती है कि द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड। अब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और वो अब फॉरवर्ड हो जाएगी टुवर्ड्स द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो बेल वाला प्रोसीजर है वो चलता रहता है, क्योंकि आज हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द कॉग्निजेंस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है 173 के बाद वो है 190 सीआरपीसी, जो कि कॉग्निजेंस की बात करता है। तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कॉग्निजेंस लेगी। अब यहाँ पर कोर्ट और प्रोसिक्यूशन दे विल कम इनटू प्ले। लेट्स से कि अगर वो जो ऑफेंस था दैट वाज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो फिर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पता ये चला कि दैट ऑफेंस वाज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, लाइक जैसे रेप केसेस हैं या फिर मर्डर केस है, तो ये हीनियस ऑफेंसेस हैं, इनका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में होता है। तो लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट जमा होगी वो लाजमी तौर पर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही जाएगी, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि वो देखेगा कि अच्छा ये ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वहां से वो रेफरेंस बनाकर आगे फॉरवर्ड कर देंगे और फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ट्रायल चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर रोल आता है प्रोसिक्यूशन का। बेसिकली प्रोसिक्यूशन क्या है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक स्टेट लॉयर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम उसको कहेंगे। अब पहले हमने ये बात सबसे पहले ये डिस्कस कर ली थी कि क्राइम इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पब्लिक राइट। तो जब वो पब्लिक राइट की इन्फ्रिंजमेंट है तो उसका मतलब ये हुआ द स्टेट विल डायरेक्टली इंटरवीन। तो स्टेट इंटरवीन करेगी थ्रू इट्स मशीनरी एंड थ्रू इट्स डिपार्टमेंट्स। और वो मशीनरी और डिपार्टमेंट क्या है, पहले पुलिस आ गई, उसके बाद फिर वो प्रोसिक्यूशन है, फिर उसके बाद वो कोर्ट्स आ जाएंगी। अब प्रोसिक्यूशन एम्पावर्ड है, एक तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो स्टेट लॉयर है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से कि अगर किसी का मर्डर कमिट हो गया, अब उसमें क्या हुआ कि जो मकतूल था जिसका मर्डर कमिट हुआ उसके भाई ने जाकर एफआईआर करवा दी। नाउ दैट पर्टिकुलर भाई विल बिकम द कंप्लेनेंट ऑफ द केस। अच्छा, अब कंप्लेनेंट अपना वकील भी हायर कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो स्टेट लॉयर है, तो वो ही सारे केस को लीड करेगा। अब उसकी ड्यूटीज क्या है कि चार्ज बेसिकली उन्होंने फ्रेम करना है, उन्होंने बताना है। पुलिस ने तो वो कर दिया, 173 की रिपोर्ट दे दी। अब उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है उसका रोल सुपरवाइजरी होगा। वो सुपरवाइज करेंगे कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई है या ठीक नहीं हुई, या क्या इसके अंदर होना चाहिए था, कौन सी चीज मिसिंग है कि जिसका जो फायदा है, जो बेनिफिट है वो एक्यूज्ड को चला जाएगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि प्रोसिक्यूशन की सिर्फ ये जॉब नहीं है कि उसने हर हाल में एक्यूज पर्सन को सजा दिलवानी है, बल्कि प्रोसिक्यूशन क्या है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टेट ये भी देखेगी कि एक्यूज पर्सन वाकई में गिल्टी भी है या नहीं है। अगर तो प्रोसिक्यूशन को ये नजर आता है कि अ पर्सन हैज बीन फॉल्सली रूल्ड इन अ केस, तो फिर वो उस एक्यूज पर्सन के फेवर में भी बात कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अब हम वापस आते सॉरी अब हम वापस आते हैं, तो उसका अब क्या हुआ कि वो जितनी भी 173 की रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन आई थी, अब उसको प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी। प्रोसिक्यूशन ही ये डिसाइड करेगी कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं वो चार्ज के अंदर होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से एक अपनी रिपोर्ट लिख देगी प्रोसिक्यूशन के ये ऑफेंस कमिट होते हुए नजर आए हैं। ये वाला एक ऑफेंस था जो कि एफआईआर के अंदर रेलेवेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि एक्यूज पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उसको भी फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ओरिजिनल एफआईआर के अंदर वो नॉर्मली ऐड नहीं होता, बल्कि वो जो 161 की स्टेटमेंट्स होती है जिसको हम सिमनियां बोलते हैं, तो सिमनियों के अंदर फिर वो ऐड होते जाते हैं ऑफेंसेस, ठीक है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि बाजू का फिर वो प्रॉपर अथॉरिटी और कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर के अंदर भी वो उसको ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि फिर प्रोसिक्यूशन ही डिसाइड करेगी कि एविडेंस क्या होना चाहिए, कौन कौन विटनेसेस आएंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कि प्रोसिक्यूशन केस को साबित करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो विटनेसेस हैं ये वेरी करते हैं, ये प्राइवेट विटनेसेस भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं। अब जैसे मर्डर केस एक हीनियस ऑफेंस भी है और एक बड़ा डिटेल जिसके अंदर ट्रायल होता है, तो इसके अंदर अब सारे बेसिकली विटनेसेस के तौर पर आएंगे, जो कंप्लेनेंट है वो भी आ जाएगा। इसके अलावा जो ऑक्यूलर अकाउंट यानी जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो कत्ल होते हुए, वो विटनेसेस भी आ जाएंगे। इसके अलावा फिर जो फॉर्मल विटनेसेस हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर एक क्रिमिनल केस में विटनेस के तौर पर आता है जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की होगी। फिर इसके अलावा अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है, तो वहां पर वो जो डॉक्टर होगा जिसने वो मेडिकल रिपोर्ट बनाई है वो भी आकर डिपोज करेगा बिफोर द कोर्ट। फिर अगर कोई मतलब फायरिंग हुई, शूटिंग हुई और उसके वजह से कोई बंदा कत्ल हुआ, तो फिर वो बैलिस्टिक्स रिपोर्ट भी वहां पर आ जाएगी, तो वो जिसने रिपोर्ट बनाई होगी वो भी विटनेस के तौर पर आएगा। तो इस तरीके से फिर वो प्रोसिक्यूशन डिसाइड करेगी सो ऑन एंड सो फोर्थ कि किस किस को विटनेस के तौर पर पेश होना चाहिए, तो एविडेंस वो लीड करेगी। उसके बाद फिर क्या है कि एविडेंस जो क्लोज करना है वो भी प्रोसिक्यूशन ने ही करना है। तो प्रोसिक्यूशन अपना इस तरीके से इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक्टिवली रोल अपना प्ले करेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कोर्ट्स के ऊपर। अब कोर्ट्स की जो हायरार्की है वो भी आपका जो थर्ड डे है वहां पर वो आप लोग उसको डिटेल से देखेंगे। शॉर्टली मैं बताता चलूं कि क्रिमिनल केसेस के अंदर सीआरपीसी की जो स्कीम है उसमें सिर्फ दो तरह की कोर्ट्स हैं, एक है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और एक है कोर्ट ऑफ सेशन। अब यही दोनों कोर्ट्स हैं जो कि ट्रायल करती हैं। तो वैसे तो सारी ही कोर्ट्स को आप तक वो केस जा सकता है, लेट्स से कि हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन वो बेसिकली एपेलेट फॉरम्स हैं, वो ट्रायल फॉरम नहीं है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि दो तरह की कोर्ट्स हैं, एक कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली कोर्ट्स का, और कौन कौन से ट्रायल कैसे होते हैं वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। स्केड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी आप लोग कंसल्ट करेंगे। फिर इसके अलावा डिफरेंट कोर्ट्स भी बनाई गई हैं, स्पेशल कोर्ट्स। जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट आया तो एंटी टेररिज्म कोर्ट अलग बन गई। इसी तरीके से जब ड्रग्स एक्ट आया तो ड्रग्स कोर्ट फिर अलग बन गई। इसी तरीके से एंटी नारकोटिक्स का लॉ है तो उसके लिए फिर कोर्ट अलग हो गई। इसी तरीके से नैब लॉज हैं तो उसके लिए फिर नैब कोर्ट अलग बन गई, ठीक है। तो इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मेन हम चीजें पढ़ते हैं सब्सटेंटिव लॉ, वो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है और इसके साथ हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसको मैं अभी कोट कर रहा हूँ, सीआरपीसी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई लॉ बनता है तो उस लॉ के अंदर वो कोड लिखी होती है कि ये कोर्ट इस तरीके से अपना रोल प्ले करेगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हमेशा ये जो कोर्ट्स होती हैं ये लॉ की क्रिएशन होती है, किसी ना किसी लॉ में लिखा होगा कि ये कोर्ट बनेगी और ये इस तरीके से काम करेगी। जैसे अब क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, बेसिक क्रिमिनल कोर्ट्स, वो सीआरपीसी की क्रिएशन है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर लिखा हुआ है कि ये दो कोर्ट्स है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन।
अब उसके बाद फिर कोर्ट क्या करेगी, इम्प्रिजनमेंट कर सकती है इफ द पर्सन हैज बीन फाउंड गिल्टी। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि उसको सजा हो जाएगी, वो इम्प्रिजनमेंट में चला जाएगा। अब वो जो पनिशमेंट्स हैं वो हम थोड़ी सी ये भी डिस्कस करेंगे जब पीपीसी की स्कीम देखेंगे। तो उसके बाद ये फिर फोर्थ एलिमेंट आ गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जो कि प्रिजन्स और करेक्शंस से रिलेटेड है। अब इसके अंदर थ्योरीज ऑफ जो पनिशमेंट है वो भी अपना रोल प्ले करती हैं, और हमारे पास जो एक लेटेस्ट व्यू है कि कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया जाए, और जो पनिशमेंट है उसका पर्पस क्या होना चाहिए, उसका पर्पस रेट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, उसका पर्पस बल्कि करेक्शन होना चाहिए, रिफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। अब इस्लामिक लॉ की हम बात करते हैं तो वहां पर डेटरेंस भी है हदूद लॉज में, इसके अलावा रेट्रीब्यूशन भी है कि भाई रेट्रीब्यूशन का मतलब ये है जैसे हम किसास का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये चीज कही जाती है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट खत्म करें, जिसने मरना था वो तो मर गया, अब आप एक और बंदे की भी जिंदगी खत्म करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको वापस रिफॉर्मेशन की तरफ लेकर आए ताकि वो सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से फिर प्रिजन रूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसको डील करते हैं, और फिर वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है कि किस तरीके से मॉडल जेल्स बनाई जाएंगी, और उसके बाद उनसे कुछ काम भी करवाया जाएगा, उनको स्किल्स वगैरह और वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इस किस्म की चीजें अब ये ज्यादातर होती जा रही है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फिफ्थ एलिमेंट के ऊपर, जो कि है प्रोबेशन एंड पैरोल। अब प्रोबेशन और पैरोल में डिफरेंस ये है बेसिक कि जो प्रोबेशंस होती हैं ये पॉसिबल है कि इम्प्रिजनमेंट में जाने से पहले किसी बंदे को ग्रांट कर दी जाए। जैसे हमारा खासकर जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, उसके अंदर ये प्रोविजंस प्रोबेशन की मौजूद हैं कि प्रोबेशन जब ट्रायल स्टार्ट होगा, या इवन ट्रायल से भी पहले कि जब उस जुवेनाइल को, बच्चे को पहली दफा गिरफ्तार किया जाएगा, तो वहां पर भी वो प्रोबेशन ऑफिसर होगा, और अगर लड़के जो बच्चा है उसके घर वालों को बुलाएंगे, अगर वो नहीं आता तो उसको प्रोबेशन ऑफिसर के साथ भी भेजा जा सकता है। तो प्रोबेशन का मतलब है कि एक सिमिलर सिस्टम चल रहा है, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम चल रहा है कि जिसके अंदर किसी प्रिजनर को आप जेल में नहीं भेजेंगे, बिहाइंड द बार्स नहीं भेजेंगे, बल्कि उसकी सोशल बेटरमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि उसको प्रोबेशन डिपार्टमेंट में भेज देंगे। ठीक है। तो पंजाब के अंदर ये मौजूद है, पंजाब प्रोबेशन एंड पैरोल सर्विसेज के नाम से पूरा डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो पैरोल है, पैरोल बेसिकली प्रिजनर्स के लिए यूज किया जाता है कि जो ऑलरेडी इम्प्रिजेंट हैं, अपनी सजा काट रहे हैं, उसके बाद उनके गुड बिहेवियर की वजह से, कंडक्ट की वजह से, और ये इत्मीनान करने के बाद कि दे आर नो मोर डेंजर टू द सोसाइटी, और वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है विद स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो प्रोबेशन में भी और पैरोल में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि भाई आपने रिपोर्ट करना है, और आपने जो है वो ये कंडीशंस पूरी करनी है, ये काम आपने नहीं करना, आपने जो है इस शहर को छोड़कर नहीं जाना, जाएंगे तो आप इधर पुलिस स्टेशन में या फिर डिपार्टमेंट को बता कर जाएंगे। तो इस किस्म की कंडीशंस हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही ब्रीफ समरी मैंने कोशिश की कि मैं पेश कर सकूं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज हम लास्ट 10 मिनट्स में क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, पीपीसी का, सीआरपीसी का और कानून शहादत ऑर्डर का। अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं? काइंडली आप में से कोई बता दें, am I audible still? Yes, sir. जी सर। सर ये आपकी वॉइस थोड़ी सी खराब बार बार होती है। मुझे भी आपकी वॉइस नहीं आ रही, पॉसिबल है कि कोई इंटरनेट का इशू हो, लेकिन मेरे तो वैसे यहाँ पे सिग्नल्स पूरे शो हो रहे हैं। तो बाकी को किसी को मसला तो नहीं है वॉइस में, सबको आवाज आ रही है? सर बीच बीच में थोड़ी सी हो जाती है अपलोड। यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी। चले सर आपकी आवाज ब्रेक।
ओके, अगर किसी को दोबारा से लेट्स से कि वॉइस ब्रेक होती है तो वो पूछ सकता है, आई विल रिपीट इंशाल्लाह। ओके, सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स पीपीसी, सीआरपीसी एंड क्यूएसओ। इनको आप देखेंगे, सबसे पहले हम पीपीसी की बात करते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड 1860। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड सब्सटेंटिव लॉ जो कि क्राइम्स को डील करता है। अब इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं और डिफरेंट इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, तो उनको हम थोड़ा बहुत जो इसमें से इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं या चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस कल करेंगे, क्योंकि कल का हमारा जो लेक्चर है वो डिटेल्ड है पीपीसी के ऊपर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक डेफिनेशन क्लॉज सबसे पहले दी गई है पाकिस्तान पीनल कोड में। उसके अंदर वो ऑफेंस की डेफिनेशन बताते हैं कि एनीथिंग पनिशेबल बाय द लॉ, वो क्या है। ओके, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? वॉइस ब्रेक कर रही थी। ओके, अभी क्लियर है वॉइस? पर अभी फिर से क्लियर हुई है, बीच अच्छा, में ब्रेक कर जाती है। अलीबा हमारे साथ है, अगर हम इसको रिकनेक्ट कर लें। सर आई थिंक उनका अपना इंटरनेट का इशू है, हमारी तरफ तो लाइक हमें तो आवाज आपकी क्लियर है। चलें, ठीक है, ओके। सो पाकिस्तान पीनल कोड, इसमें ऑफेंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि एनीथिंग पनिशेबल बाय लॉ इज एन ऑफेंस। तो कोई भी चीज जो इसको लॉ ने कहा है कि ये ऑफेंस है, वही ऑफेंस है, ठीक है। तो अगर लेट से हमारी सोसाइटी के मुताबिक कोई चीज बहुत ही इमोरल क्यों ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान पीनल कोड उसको ऑफेंस के तौर पर डिस्क्राइब नहीं करता तो वो डेफिनेटली ऑफेंस नहीं होगा। इसके अलावा इसमें जो पनिशमेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 53 है पाकिस्तान पीनल कोड का, और इसमें 10 तरह की पनिशमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो बाकी पनिशमेंट्स हैं वो नॉन इस्लामिक को कह लें, या फिर वो कॉमन लॉ डेरिवेशन कह लें, या कोई भी जो नॉर्मल पनिशमेंट्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले उसके अंदर है किसास। किसास, आप बल्कि इसको नोट कर लें, अगर सेक्शन 53 आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इनको नोट कर लें। ये 10 तरह की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसास है, फिर दियत है, फिर अर्श है, फिर दमान है, फिर ताजीर है, ठीक है। फिर उसके बाद डेथ पेनल्टी है, फिर उसके बाद इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फिर उसके बाद नंबर 8 के ऊपर इसमें इम्प्रिजनमेंट आती है, जो कि दो डिस्क्रिप्शन है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट और एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। फिर उसके बाद फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 9 पर, और उसके बाद नंबर 10 के ऊपर फाइन आ जाएगा। तो ये 10 तरह की पनिशमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 53 में लिखी हुई हैं। अब किसास बेसिकली, इसको बिल्कुल ब्रीफली मैं लेकर चलूंगा। किसास बेसिकली क्या है कि वो प्रिंसिपल के ये एप्लीकेबल है कत्ल में और हर्ट केसेस में, जो कुरान की आयत है, आंख के बदले आंख और सो ऑन। तो जहां पर कोई बंदा किसी को कत्ल करेगा तो थ्रू स्टेट वो बदला ले सकता है, तो कत्ल के बदले कत्ल होगा, ये किसास है, ये इस्लामिक पनिशमेंट है। इसी तरीके से हर्ट केसेस में भी किसास एप्लीकेबल है, कि जहां पर 337 सेक्शन है पूरा पीपीसी का, कल उसको हम डिटेल से देखेंगे, तो वहां पर भी कुछ ऑफेंसेस में किसास एप्लीकेबल होगा। अब उसके बाद दियत है। दियत बेसिकली एप्लीकेबल है कत्ले खता में, कत्ले बिस्सबब में, और कत्ले शिबे अम्द में भी कुछ सिचुएशंस में दियत का ऑर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। तो दियत बेसिकली क्या है, ये मॉनेटरी कंपनसेशन है। बेसिक इस्लामिक लॉ में इसकी वैल्यू 100 ऊंट थे, लेकिन अभी हमारे पास जो लॉ है वो सेक्शन 323 है पीपीसी का, और उसके मुताबिक 30630 यानी कि 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, उर्दू में बोलें तो 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की जो वैल्यू बनती है वो दियत की वैल्यू है। और हमारा जो गजट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो हर फाइनेंशियल ईयर गजट के अंदर ये इशू करती है कि इस फाइनेंशियल ईयर पूरे में दियत की क्या वैल्यू होगी, ताकि वो डेली बेसिस के ऊपर सिल्वर के रेट्स ऊपर नीचे रहते हैं तो वो कैलकुलेट ना करना पड़े। उसके बाद हमारे पास अर्श और दमान, ये दो चीजें हैं। दमान मीन्स जो जुआद से लिखते हैं, जिसे आप टॉट बोलते हैं। तो जो आप में से अगर कोई शरिया लॉ का स्टूडेंट है
तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फिक़्ह ज़मान के नाम से, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, टॉर्चुअस लाइबिलिटी। अब जो अर्श है, अर्श बेसिकली जो ज्यादा आप कह लें कि ग्रेव नेचर के हर्ट केसेस हैं उसके अंदर अर्श होता है। ये फिक्स्ड मॉनेटरी कंपनसेशन है और इसको जो है इन टर्म्स ऑफ दियत कैलकुलेट किया जाता है। यानी हर्ट केसेस में कहीं पर लिखा होगा कि अर्श शैल बी लायबल टू अर्श 5% ऑफ द दियत, कहीं पर ये 10% ऑफ द दियत है, कहीं पर ये 15% ऑफ द दियत है, बाज जगह पर हाफ ऑफ द दियत है, फुल दियत है। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करेगा। जो दमान है वो बेसिकली फिक्स्ड नहीं है, वो जिस तरीके से हर्ट कॉज हुआ उसके बाद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए रूल ऑफ थंब कोर्ट अप्लाई करेगी और उसके बाद वो मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्ड कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने गाड़ी से किसी दूसरे बंदे को हिट कर दिया, अब उसको जो है वो बोन फ्रैक्चर हो गई, अब 3-4 दिन वो अपने काम पे नहीं जा सकता, पॉसिबल है कि उसकी जो डेली वेजर है वो दिहाड़ियां उसकी जाया हो जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली कोर्ट कैलकुलेट करेगी इन चीजों को और दमान अवार्ड कर देगी, ठीक है। अब इसी तरीके से किसास, दियत, अर्श, दमान, उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाता है ताजीर। अब ताजीर बेसिकली क्या है कि ये जनरल अथॉरिटी है स्टेट की तरफ से जो कि काजी को दी जाती है। अब हमारे यहाँ काजी नहीं है बल्कि जजेस बैठे हैं, तो जजेस को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि भाई आप ताजीर के तौर पर सजा दे सकती हैं। जैसे कत्ल है, कत्ल में किसास की सजा भी है 302A में। अब इसी तरीके से बी में ताजीर की सजा है, यानी कि डेथ पेनल्टी किसास के तौर पर नहीं बल्कि ताजीर के तौर पर अवॉर्ड की जा सकती है। अब इनकी इम्प्लीकेशंस डिफरेंट हैं, वो हम कल की सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद और भी जितनी भी इम्प्रिजनमेंट्स होती हैं ये ताजीर की ही सजाएं हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन आ जाएगी किसास की और ताजीर की, जो कि स्टेट या फिर स्टेट फंक्शनरी की अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी पनिशमेंट अवॉर्ड कर सके। कोई भी से मुराद ये है कि जैसे जब लिखा हुआ है कि इस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स है, तो 7 ईयर्स विल बी द मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट। वो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कम हो सकती है। तो 7 साल लिखा गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि 7 साल से कम सजा नहीं हो सकती। तो ताजीर में यही ऑप्शन होता है कोर्ट के पास कि वो अपनी अथॉरिटी को यूज इफेक्टिवली कर सकती है। फिर उसके बाद डेथ पेनल्टी आ जाती है। अब डेथ पेनल्टी का हम सबको पता है तकरीबन 8-9 तरह के ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पीनल कोड में जिसमें डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के हवाले से भी काफी सारे ऑफेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान पीनल कोड में हैं। फिर उसके बाद इम्प्रिजनमेंट है सिंपल और रिगरस, ठीक है। तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं कि जहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट का लिखा हुआ है और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर रिगरस का लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तो कहीं पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो यही समझा जाएगा कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। जहां पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट देनी होगी वहां पर रिगरस का वर्ड सेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड में यूज हुआ हुआ साथ साथ। फिर उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही कम ऑफेंसेस में, लाइक मेरा ख्याल 1, 2 या 3, 4 से ज्यादा नहीं है पाकिस्तान पीनल कोड में जहां पर फॉरफीचर की पनिशमेंट है। और उसके बाद लास्ट में फाइन आ जाता है। तो ये था सेक्शन 53। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो वहां पर बहुत सारे जो हमारे रेमिशंस हैं, रिस्पाइट्स हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जो इम्प्रिजनमेंट्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएंगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि फॉलोइंग सेक्शंस में जिनका आंसर मिला हुआ है। फिर उसके बाद 76 से 106 पीपीसी में जनरल एक्सेप्शंस मौजूद हैं जो कि हमने कल वाले सेशन में इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिर उसके अब यहाँ तक पीपीसी में कहीं पर भी कोई ऑफेंस नहीं है। जो पहला ऑफेंस आएगा पीपीसी में पाकिस्तान पीनल कोड में वो बेसिकली अबेटमेंट है जो कि 109 से स्टार्ट होता है। अबेटमेंट वाला चैप्टर जाएगा। फिर उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आ जाएगा। उसमें वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान है। इसके अलावा उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और इस तरह के सारे ऑफेंसेस मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं तो ऑफेंसेस जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट और बाय द पब्लिक सर्वेंट्स। फिर उसके बाद बहुत सारी डिस्कशन है पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से, ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी या फिर आप कह लेंगे लोगों की हेल्थ से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे आते हैं। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो ब्लेस्फेमी से रिलेटेड लॉज और ऑफेंसेस हैं जो कि आजकल काफी हॉट टॉपिक भी है।
अब ब्लास्फेमी 295 एंड ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट होता है, तो फिर उसके साथ ही अगला जो चैप्टर हमारे पास आता है वो कत्ल से रिलेटेड है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। 299 एंड ऑनवर्ड्स हम उसमें चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर कत्ल के साथ ही हर्ट आता है, हर्ट के बाद फिर जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो आ जाती है, फिर उसके बाद किडनैपिंग एंड एबडक्शन के ऑफेंसेस हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे तो फिर ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस या जेंडर बेस्ड ऑफेंसेस हैं, जिसके अंदर खासकर खवातीन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका जिक्र मौजूद है। फिर उसके बाद रेप आ जाता है, रेप के बाद फिर आ जाएगा जो ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी है 379 378 में थेफ्ट आ जाता है, फिर उसके बाद थेफ्ट के साथ रॉबरी आ जाएगी, डेकॉइटी आ जाएगी, एक्सटॉर्शन आ जाएगी, फिर उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी है उसमें चीटिंग आ जाती है 415 420, और उसके बाद फिर हम आगे चलते जाएंगे तो वो फॉर्जरी और वो सारी चीजें, और लास्ट में जो ऑफेंसेस हैं वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के हैं। इसके अलावा डेफिनेशन है 499 एंड 500 में, और 509 के अंदर बेसिकली हरासमेंट से रिलेटेड एक प्रोविजन दी हुई है, और 511 फिर पीपीसी है कि जहां पर अटेम्प्ट के हवाले से कहा गया है कि जो अगर ऑफेंस कमिट ना किया जाए बल्कि सिर्फ अगर अटेम्प्ट किया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था पाकिस्तान पीनल कोड का कि इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। अब हम सीआरपीसी की बात करते हैं बहुत ब्रीफली, चूंकि टाइम मैं देख रहा हूँ बहुत कम रह गया, एक और टॉपिक भी कवर करना है। सीआरपीसी में बेसिकली स्कीम क्या है कि ये सारा का सारा प्रोसीजरल लॉ है, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हम कह सकते हैं वो ये है, एक तो जस्टिस ऑफ पीस बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आ जाता है कि जस्टिस ऑफ पीस क्या है 22A एंड 22B। जब एफआईआर नहीं होती तो हम जस्टिस ऑफ पीस के पास चले जाते हैं जो सेशन कोर्ट है, और फिर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ये इसका एक नॉर्मल और प्रैक्टिकल यूज है जिसके लिए हम 90% ऑफ द टाइम्स इसको यूज करते हैं। बाकी भी इसमें पावर्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद सेक्शन 46 से ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट किस तरीके से होगा, मैनर ऑफ अरेस्ट क्या होगा। फिर उसके बाद सेक्शन 54 आई कैन टेल यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पावर्स हैं पुलिस की, कि पुलिस की पावर क्या क्या है अरेस्ट करने की, और किन किन सिचुएशंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। फिर उसके बाद सेक्शन 61 है जिसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर कोई बंदा अरेस्ट होगा तो उसको पेश करना है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद सेक्शन 87 एंड 88, जब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है कोई बंदा, इश्तिहारी हो जाता है, यानी कि वो ट्रायल चल रहा था, उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर थी और उसने अपने आप को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया बल्कि वो भाग गया वहां से। ठीक है, तो 87 88 की बेसिकली कार्रवाई होती है, उसके अंदर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, वारंट है, और वो पूरा प्रोसीजर लिखा है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, फिर उसके बाद 107 आ जाता है, ये जो कलंदरा वगैरह या ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, इसको भी आप लोग जरा देख लीजिएगा। 107 और 151 का एक कलंदरा टाइप एक चीज बनती होती है, इसको फिर किसी टाइम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंटली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अगेन इन्वेस्टिगेशन का है 154 से 173, जो कि आप थर्ड डे के सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे। फिर उसके बाद कॉग्निजेंस आ जाती है 190 में। फिर उसके बाद 20 से 205 तक प्राइवेट कंप्लेंट के सेक्शंस हैं। फिर 220 से लेकर 240 तक चार्ज आ जाता है, और फिर उसके बाद 241 ऑनवर्ड्स जो ट्रायल है बिफोर दी मैजिस्ट्रेट उसकी प्रोविजंस हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो 265 सेक्शन है जो कि ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन को डील करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस काफी सारी हैं इसके अंदर। इसमें अपील और रिवीजन की जो प्रोविजंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर 561A है जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं। फिर इसके बाद एक सुपरदारी का पूरा चैप्टर है जो कि 500 515 18 516 523 550A, वहां पर आप चले जाते हैं। 540 के अंदर जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया की भी प्रोविजंस वहां पर अप्लाई होती हैं, और इसके अलावा अगर कोई विटनेस आपने बुलाने हैं तो वो भी वहां पर चीज आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी जो कि सीआरपीसी में मौजूद है। तो यानी सारा का सारा प्रोसीजर फ्रॉम द डे 1 टू द डे लास्ट वो सारा का सारा सीआरपीसी में मौजूद है कि एक क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो ये सीआरपीसी में। उसके बाद हम कानूनी शहादत की तरफ जाते हैं।
तो एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि इट इज कॉल्ड एज एंड रिगार्डेड एज अ मदर ऑफ लॉ। तो कानून शहादत ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर अगर कमांड है किसी भी लॉयर की, तो वो हमेशा एक डिस्टिंक्टिव लॉयर होगा। तो अगर ये आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, छोटा लॉ है लेकिन ये बहुत टेक्निकल है, तो ये हमेशा आपको एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करेगा बाकी लॉयर से। तो इसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफली 1-2 मिनट में देख लेते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट होती है इसके आर्टिकल 2 से। उसके बाद फिर आर्टिकल 3 है जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस की बात की गई है कि कौन बंदा विटनेस हो सकता है। अब इसके साथ हम आर्टिकल 17 मिलाकर पढ़ते हैं जहां पर नंबर ऑफ विटनेसेस का लिखा हुआ है कि किस केस में कितने विटनेस होंगे। जैसे फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में कम 2 विटनेस होना लाजमी है, 2 मेल विटनेसेस, और अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल्स। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि आप 4 फीमेल्स ले लें, दैट इज नॉट परमिसिबल। 1 मेल विटनेस का होना लाजमी होगा। उसके बाद हम आगे चलें तो इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस के जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कि बेसिकली बात करेंगे कि जो इसके अंदर आ जाते हैं कॉन्फिडेंशियल काइंडली ये माइक ऑफ कर लें। आई थिंक ये माइक ऑन हो गया गलती से। ओके, उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एक्म्प्लिस एंड अप्रूवर का, आर्टिकल 16 रेड विद आर्टिकल 43 एंड 129 बी है मेरे ख्याल उसका, क्यूएसओ का। फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रेलेवेंसी का एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो कि आर्टिकल 18 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 29 तक जाता है, कि जहां पर वो बताया हुआ है कि रेलेवेंसी क्या है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये आगे आपके सेशन में है कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो मैं उन्हीं स्पीकर के ऊपर ये छोड़ देता हूँ। सिंपल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एविडेंस किस किस चीज का दिया जा सकता है। वो 2 चीजें आर्टिकल 18 में लिखी हुई है, एक है फैक्ट इन इशू और एक है रेलेवेंट फैक्ट। अब ये इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है कि फैक्ट इन इशू वो है जो कि मेन जिसके ऊपर आपका केस फाइल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंडर डिस्कशन है कि ए हैज मर्डर्ड बी, तो अब ये क्या है, ये फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी को मर्डर किया या नहीं किया। अब उसके बाद अगर कोई मोटिव सामने आता है कि ए के पास मोटिव था या नहीं था उसको कत्ल करने का, तो ये भी फैक्ट इन इशू है। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। अब रेलेवेंट फैक्ट्स की बहुत एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। अब वहां पर वो सारी चीजें आ जाती हैं कि उस बंदे ने किया या नहीं किया, कंडक्ट कैसा था, प्रीवियस कैसा था, सब्सीक्वेंट कैसा था, रिलेशनशिप क्या था पार्टीज का। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करते हैं कि इन फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स का ही एविडेंस सिर्फ दे सकते हैं कोर्ट में। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास एडमिशंस आ जाते हैं। आर्टिकल 30 टू आर्टिकल 36 एडमिशन के साथ ही कन्फेशन है। आर्टिकल 37 से लेकर 43 44 तक ये जाता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 46 है या 47 है, इसके अंदर फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन आ जाती है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक्सपर्ट एविडेंस है, जो कि आर्टिकल 59 से एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एक्सपर्ट एविडेंस वो आ जाता है। फिर हम इसको जब खत्म कर लेते हैं तो फिर हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आ जाता है कि एविडेंस बेसिकली क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस क्या है। फिर उसके बाद प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या है, आर्टिकल 70 से आप आगे चले जाएं तो ये चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद प्रिजम्पशंस का एक पूरा चैप्टर है कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहां पर कुछ फैक्ट्स को कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम। फिर इसी तरीके से कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि शेल प्रिज्यूम से रिलेट करते हैं। फिर उसके बाद आप आगे चले जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है कि एविडेंस किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट्स की प्रिजम्पशन कोर्ट किस तरीके से लेगी। अभी ये चीजें सिर्फ आप सुन लें एक दफा, जब आपका एविडेंस का लेक्चर होगा तो वहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं तो जुडिशियल नोटिस आ जाता है, स्टॉपल के प्रिंसिपल्स हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है पूरा उसका बर्डन ऑफ प्रूफ का। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते। फिर इसके बाद इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, फिर इसके अलावा उसके कैरेक्टर के हवाले से एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, किन केसेस में दिया जा सकता है।
और फिर लास्ट में दो चीजें, एक तो जो एक विटनेस होता है जिसको जो आपके ही खिलाफ चला जाता है, मेरे माइंड से वो स्किप कर गया फौरन, हॉस्टाइल विटनेस, सॉरी, हाँ हॉस्टाइल विटनेस उसको बोलते हैं। उसकी प्रोविजन है आर्टिकल 150 में, यानी जो विटनेस आप खुद लेकर आए लेकिन वो आपके खिलाफ ही एविडेंस देना शुरू कर देता है, तो फिर उसको आप कैसे डील करते हो और क्या करते हो उसमें लिखा है। और फिर लास्ट में आर्टिकल 164 है, 161 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप नोट कर लें कि जहां पर कोर्ट की वाइड पावर्स हैं कि कोर्ट खुद भी क्रॉस एग्जामिन कर सकती है किसी भी विटनेस को, कोई भी सवाल पूछ सकती है, कोई भी किसी भी अथॉरिटी से रिकॉर्ड मंगवा सकती है। तो ये सारी इसकी जनरल पावर्स हैं कोर्ट की। फिर लास्ट में 164 आर्टिकल है जो कि आजकल मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू एविडेंस हम कोर्ट्स में पेश करते हैं, वो परमिसिबल है या नहीं है। अगर वो परमिसिबल है तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, किन किन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आप कोई एविडेंस, जैसे अगर मेरे फोन के अंदर पिक्चर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट में जाकर डायरेक्टली प्रेजेंट कोर्ट में नहीं कर सकता, तो आई हैव टू फॉलो अ कंप्लीट प्रोसीजर जो कि अब जजमेंट्स में हमें मिलता है। तो वो उस लेक्चर में आप अपने जो रेलेवेंट स्पीकर है उनसे सवाल भी कर सकते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट में लूंगा अपने लास्ट जो आज का टॉपिक कवर करने वाला है, वो है मेंसरिया एंड एक्टेसरिया। इसमें आप लाजमी तौर पर, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो एक पेन और पेज अपने पास रख लें, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। मेंसरिया बेसिकली कहते हैं गिल्टी माइंड को, अ पर्सन हैविंग द गिल्टी माइंड, उसको हम कहेंगे मेंसरिया। अब मेंसरिया के डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको हम लेवल्स ऑफ कल्पेबिलिटी भी बोलते हैं। कल्पेबिलिटी का मतलब ये है कि जहां पर लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी किसी भी बंदे के ऊपर। तो अब ये लाइबिलिटी के डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इम्प्रिजनमेंट अगर किसी ऑफेंस की 7 साल है तो वो मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उसको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है 2 साल की हो जाए, ये भी हो सकता है 3 साल की हो जाए। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सजा को कम करते हैं या सजा को ज्यादा करते हैं? जो सजा को कम करने वाले हैं उनको हम बोलते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब इसी तरीके से जो सजा को ज्यादा करने वाले हैं वो है एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस। अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास 2 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो में ये है कि एक बंदा, पर्सन ए, वो मोटिव रखता है पर्सन बी को कत्ल करने का, ठीक है, उनकी पहले से दुश्मनी है, एनमाइटी है, और ए के पास एक मोटिव भी है कि वो बी को कत्ल करे। वो अपने घर से निकला, पिस्टल उसने खरीदा, उसको लोड किया, बिल्कुल इरादा लेके घर से निकला और जाकर उसने बी को कत्ल कर दिया। एक ये कत्ल की सिचुएशन ये हो गई, 302 की एफआईआर हुई। अच्छा, एक सिचुएशन ये है कि एक बंदा ऐसा कोई इरादा लेकर घर से नहीं निकला, मार्केट में गया, मार्केट में जाकर लड़ाई हो गई एक बंदे के साथ, और वहां पर इन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसने क्या किया कि दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया। अब ये 2 सिनेरियोज आपके पास हैं। अब इन दोनों सिनेरियोज के अंदर कोई डिफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एनीवन? ओके, चले मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। इसके अंदर अब क्या होगा कि जो सिनेरियो 1 है उसमें पनिशमेंट ज्यादा होगी क्योंकि लेवल ऑफ कल्पेबिलिटी उसमें ज्यादा है। अब ये जो दूसरा सिनेरियो मैंने दिया है इसके अंदर पनिशमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसमें पनिशमेंट कम होगी। अब इसकी रीजन क्या है कि लेवल ऑफ कल्पेबिलिटी में डिफरेंस आ गया कि एक तरफ इंटेंशन थी और दूसरी तरफ इंटेंशन पहले से नहीं थी बल्कि वो बाद में क्रिएट हुई। अब इसी तरीके से इसको नोट कर लें कि हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं कल्पेबिलिटी के। फर्स्ट हमारे पास होता है इंटेंशन। अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्पेबिलिटी है, जिसकी इंटेंशन सामने आ जाएगी उसको मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। इंटेंशन के बाद होता है सेकंड पर नॉलेज। नॉलेज के बाद तीसरे नंबर पर आता है विलफुल ब्लाइंडनेस, फोर्थ पर आता है रेकलेसनेस, और 5वें पर आता है नेग्लिजेंस। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इज वेरी सिंपल कि जहां पर आपका गिल्टी माइंड बिल्कुल फुल फोर्स के साथ अप्लाई होगा किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। कि जैसे आपने क्या किया कि किसी को आप मारना चाहते हैं और इसके अलावा आपने कोई रिजल्ट अपने माइंड में नहीं सोचा और कोई इंटेंशन आपकी थी ही नहीं माँ सिवाय इसके कि इस बंदे को कत्ल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंटेंशन है।
अब उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो नॉलेज है, यानी कि जो आपका एक्ट है वो इतना इमिनेंट था कि आपकी बेशक इंटेंशन थी या नहीं थी, या फिर आप इन ऑल सर्टेनिटी कोई एक रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बट यू हैव द नॉलेज कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो एट द एंड यही रिजल्ट उसका निकलेगा। कि जैसे अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर खड़े हैं जिसके 10-12 फ्लोर्स हैं, आप बिल्कुल टॉप के ऊपर हैं, अब वहां से अगर आप किसी को पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? दैट इज इन योर नॉलेज कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बंदा गिर के मर जाएगा। अब यहाँ पर इंटेंशन है या नहीं है, लेकिन नॉलेज जरूर है। जैसे कि अगर इफ अ फायर हैज ब्रोक आउट और वहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा मुश्किल में है, एक बंदा जल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? अब डेफिनेटली दिस इज इन योर नॉलेज कि अगर मैं इसको नहीं बाहर निकालूंगा तो ये मर जाएगा। एक बंदा आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, अगर आप नाउ यू आर ड्यूटी बाउंड कि आप उसको बचाओगे, अगर आप खुद आपको नहीं आता तैरना, तो आप कम से कम किसी अथॉरिटी को कॉल करोगे, ठीक है। अब आपके नॉलेज में आ गया कि ये बंदा ही इज ड्राउनिंग, ही कैन नॉट स्विम, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी विद योर नॉलेज, ठीक है। आपके अपने एक्ट की वजह से भी और ओमिशन की वजह से भी, दोनों सूरतों के अंदर आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन का जो रिजल्ट है वो क्या निकलने वाला है, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा? वो उसके अंदर नॉलेज में आ जाएगा। अच्छा, नॉलेज के बाद जो थर्ड लेवल है, यानी कि इंटेंशन और नॉलेज। नॉलेज में हो सकता है कि पनिशमेंट थोड़ी सी कम हो जाए, इंटेंशन में थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद थर्ड लेवल हमारे पास आता है willful blindness. अब willful blindness बेसिकली क्या है कि where you had the means of getting knowledge of something, लेकिन आप जानबूझकर आंखें बंद कर लेती हो। अब फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है मार्केट में, उसकी जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए है, एक बंदा आपको ऑफर करता है वो 20,000 रुपए में। अब यहाँ पर बीइंग प्रूडेंट पर्सन यू मस्ट नो कि अगर इतनी कम प्राइस के ऊपर कोई दे रहा है तो डेफिनेटली ये चोरी का ही होगा। अब आपके पास इंक्वायरी का चांस था, आप उससे पूछते कि भाई इतना सस्ता आप क्यों दे रहे हो, लेकिन आपने कहा कि नहीं इसमें मेरा फायदा है, तो चलो मुझे पूछने की क्या जरूरत है, बस मिल रहा है तो ले लेते हैं। अब ये क्या है? ये विलफुल ब्लाइंडनेस है। अब आपको पता हो कि लेट से कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है, आपको दोस्त, और वो कहता है जी कि ये पैकेज डिलीवर कर दो, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। अब नॉर्मल एक पैकेज डिलीवर यहाँ फ्री में भी हो सकता है, या इफ यू आर अ राइडर, ठीक है, आपका काम ही यही है, 200, 250, 300 रुपए उसके कोई ऑफर करेगा तो दैट विल बी सफिशिएंट इन रूटीन वर्क। लेकिन एक बंदा आपको 10,000 रुपए दे रहा है, अब यू मस्ट आस्क कि भाई इसके अंदर ऐसी क्या चीज है इस पैकेज में कि जिसके लिए आप मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पूछा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट विल बी विलफुल ब्लाइंडनेस। पहले केस में आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी आ गई, 411 को ऑफेंस बनता है। दूसरे केस में आपके पास हो सकता है कि कोई कॉन्ट्राबैंड आ गई हो, कोई ड्रग्स हो उसके अंदर, कोई नार्कोटिक्स हो, तो उनकी पोजेशन की वजह से आप जो है वो लाइबिलिटी के अंडर आ जाएंगे। अब बाद में कहते हो जी कि नहीं मुझे तो नहीं पता था, लेकिन अब इन सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए दैट विल बी रिगार्डेड एज अ विलफुल ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब उसके बाद दो चीजें रह गई, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? रेकलेसनेस के अंदर आपको रिस्क का पता होता है कि मैं ये काम करूंगा तो उसमें ये रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल रेकलेस ड्राइविंग, जैसे अगर आप मरी रोड के ऊपर जा रहे हैं, कंजेस्टेड है, ट्रैफिक होती है, लोग होते हैं, अब वहां पर आप 100-120 की स्पीड के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हो। अब आप हो सकता है कि भी आपके सामने कोई नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप किसी को हिट ना करो, लेकिन क्या होगा कि ये फिर भी रेकलेस ड्राइविंग है कि आपको रिस्क का पता है। अब इसमें रिस्क क्या है कि आपकी कार किसी को भी हिट कर सकती है, पासर बाई को, किसी और गाड़ी को, या फिर आप जिगजैग करना शुरू कर दें, या फिर आप रेस लगाना शुरू कर दें रोड के ऊपर, ठीक है। तो ये अब आपको रिस्क का पता है कि ये काम करने का रिस्क क्या है, लेकिन फिर भी आप उस रिस्क ले लेते हैं, वो काम आप कर लेते हैं, तो ये रेकलेसनेस है। अब नेग्लिजेंस के अंदर क्या है कि नेग्लिजेंस के अंदर आपको पता नहीं है। अब इसी सिचुएशन को रखा जाए तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग क्या हो सकती है? नेग्लिजेंट ड्राइविंग ये है कि आपने लेन की, अब आप प्रिस्क्राइब स्पीड लिमिट्स में भी है, आप जिगजैग भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और साथ साथ अपना फोन यूज कर रहे हैं। अब ये क्या है? ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग है। या फिर आपके जो साइड मिरर्स है, जो रियर व्यू मिरर है, वो आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया, आपने ब्रेक्स प्रॉपरली अप्लाई नहीं की, ठीक है, यानी कि आप कोई रिस्क नहीं ले रहे थे, लेकिन आपने ड्राइविंग गलत तरीके से की, नेग्लिजेंटली की।
तो ये डिफरेंस आ जाएगा रेकलेसनेस में और नेग्लिजेंस में, ठीक है। तो ये मेंजरिया था, और उसके बाद क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो दूसरा एलिमेंट होता है वो एक्टेसरिया है। अब बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स हैं वो सोचने से नहीं होते, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक्ट परफॉर्म करना पड़ता है। लेट्स से कि आपने सोचा कि मैं उस बंदे को मार दूंगा, ये मेंजरिया है, लेकिन इसके साथ कोई एक्टेसरिया नहीं है तो ये क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, एक ऑफेंस ऐसा है पीपीसी में कि जो सिर्फ सोचना ही ऑफेंस है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मैंने जिक्र किया था। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये सोचना ही, कंस्पायर करना ही ऑफेंस है। बेशक आपने उस डिजाइन को, उस कॉन्स्पिरेसी को कैरी आउट किया या नहीं किया, सिर्फ सोचने की वजह से वो ऑफेंस बन जाएगा। बाज़ औक़ात ऑफेंसेस ऐसे हो जाते हैं अटेम्प्ट के, वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ओमिशन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने, आपको याद होगा कि कराची के अंदर एक केस था आज से 13-14 साल पहले, जहां पर रेंजर्स ने एक बंदे को गोली मार दी, एक लड़के को पार्क में, ठीक है। 4-5 लोग खड़े हुए थे, उसके बाद 40-45 मिनट वो लड़का ब्लीड आउट हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर ये ओमिशन, लेट्स से कि एक बंदे ने गोली चलाई, अब उसके बाद होना क्या चाहिए था कि अगर ऐसा हो भी गया तो आपको उसको बचाना चाहिए था, या आप एम्बुलेंस कॉल करते हैं या खुद आप उसको कहीं पर ले जाते। यू वर ड्यूटी बाउंड अंडर द लॉ, आपने वो नहीं किया। अब यहाँ पर एक्टेसरिया आपका क्या है, कुछ ना करना ही एक्टेसरिया बन जाएगा, कुछ ना करना ही आपका क्राइम बन जाएगा, वो लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो आई थिंक उनको सारों को ही सजाए मौत फिर हुई थी। तो इसी तरीके से मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई एक बंदा डूब रहा है, तो अब वहां पर आपको कुछ करना है, पॉजिटिव एक्ट परफॉर्म करना है, आपने नहीं किया तो आपने क्राइम कमिट किया। इसी तरीके से कोई क्राइम आपके सामने हुआ, यू आर ड्यूटी बाउंड कि आप उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दोगे, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपने खुद भी अब ये एक क्राइम कमिट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एक होता है गेट कीपर होता है, उसकी ड्यूटी ही यही है कि वो आने जाने वाले लोगों के ऊपर नजर रखे। उसको बताया गया कि भाई जो भी आएगा तो आपने उसका आईडी कार्ड नंबर और सारी चीजें नोट करनी है। अब उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की और अगर कोई अकरेंस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। तो एक्टेसरिया में हम डिफरेंट चीजें देख लेते हैं, इसके अंदर एक्ट्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर ओमिशंस भी आ जाती हैं, फिर इसके अलावा इसके अंदर कॉजेशन और डायरेक्ट लिंक, यानी कि अगर आपका लेट्स से कि मेंजरिया नहीं था लेकिन सिर्फ एक्टेसरिया की वजह से ऑफेंस कमिट हो सकता है। अब जैसे आपका कत्ले खता है, वहां पर कोई मेंजरिया या इंटेंशन नहीं होती। इसी तरीके से आपका जो कत्ले बिसबब है, वहां पर भी आपकी इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, लेकिन अगर कमिट हो गया फिर भी मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से या किसी इलीगल एक्ट की वजह से, तो फिर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। तो टाइम पूरा हो गया है सेशन का, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो आप काइंडली पूछ लीजिए। किसी और चीज को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको कल भी मेरा ही सेशन होगा, तो आप उसको कल के लिए भी सेव कर सकते हैं, हम उसको कल भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी प्लीज। सो अगर किसी का क्वेश्चन है सो वन बाय वन आप लोग हैंड रेज कर लें तो फिर हम नेम कॉल आउट कर लेते हैं। Mahima, unmute your mic and ask. Yes, please. सर ये पनिशमेंट काइंडली जरा दोबारा से समझा दें। क्या चीज, सॉरी? सर रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट। रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट? यस सर। हाँ, रेट्रीब्यूशन में बेसिकली होता है कि आपने, जैसे आप कहते हैं ना बदला लेना, इसका जो नॉर्मल मीनिंग है हम ये लेते हैं रेट्रीब्यूशन, लेकिन हम इसको एक और एंगल से, पॉजिटिव एंगल से देखें तो अब लेट्स से कि अगर किसी का कोई बंदा कत्ल होता है, काइंडली अगर क्वेश्चन ये मुझे शो हो रहे हैं, फोन मेरा एक्चुअली इस तरीके से दूसरे एंगल से पढ़ा, मैं पढ़ नहीं सकता यहाँ पर, तो आप लोग माइक ऑन करके ना काइंडली डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ लें, पढ़ना मेरे लिए फिलहाल मुश्किल होगा। अच्छा,
तो रेट्रीब्यूशन फिर क्या है कि इंसाफ होना चाहिए, ठीक है, कि यानी अगर एक पर्सन एग्रीव्ड है तो उसमें फिर क्या होगा कि वो लेट्स से कि अगर वो फील करता है कि भाई मेरा फलां बंदे ने एक बंदा कत्ल कर दिया है, तो फिर आप क्या करें कि उसको छोड़ देंगे, या फिर इस वजह से कि भाई नहीं अभी तो हमें रिफॉर्मेशन करनी है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि अगर आपने किसी को इंसाफ नहीं दिया, अगर एक बंदा चाहता है कि मेरे भाई के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, लेट्स से कि अगर स्टेट उसको सजा नहीं दे रही, तो ये भी तो हो सकता है कि वो खुद जाकर उसको कत्ल कर दे। अक्सर आपने देखा कि कचहरी के अंदर कई दफा मर्डर्स कमिट हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर फिर एनार्की फैलने का भी खदशा है। ये भी पॉसिबल है कि आप एक और क्रिमिनल पैदा कर दें अगर आप रेट्रीब्यूट नहीं करते किसी को, तो ठीक है, तो ये इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, जो आपने लेक्चर दिए लाइक इनका पेपर कब होगा? सॉरी, इसका सर देखें, एक कॉन्विक्ट होता है और एक एक्यूज्ड होता है, ठीक है। एक्यूज्ड कौन है? जिसको हम उर्दू में मुल्जिम कहते हैं कि ही इज एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। तो जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज यही होती है कि यू हैव कमिटेड ऑफेंस दिस इज दिस एंड दैट। तो वो क्या है कि उसके ऊपर इल्जाम आ गया, एक्यूज्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर तो एक्यूज्ड होने के बाद ट्रायल चला और वो साबित भी हो गया और कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, तो फिर हम उसको कन्विक्ट कहेंगे। तो कन्विक्ट वो बंदा है जिसको सजा सुना दी गई है, और एक्यूज्ड वो है कि जिसको सजा नहीं सुनाई गई, अभी उसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। और अगर ट्रायल के बाद वो ही नॉट फाउंड गिल्टी, तो बस फिर उसको वहां से एक्विट कर देंगे और वो अब एक्यूज्ड भी नहीं रहेगा, मतलब कि अब वो क्लियर है बिल्कुल। ये हसाम कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर क्या नाम है जो आपने लेक्चर दिया है इसका पेपर वीकेंड के बाद होगा? लाइक कब होगा पेपर? इसका क्या सीन होगा? अच्छा, इसका आंसर सॉरी मैं नहीं दे सकूंगा, ये ऑर्गेनाइजर से आप पूछ लीजिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसा स्केड्यूल किया हुआ है तो शायद ऐसा हो, मेरे नॉलेज में नहीं, सॉरी। Sir, I have a question. अच्छा सही है सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू जी, प्लीज। सर आपने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसीड करता है। तो हमने पढ़ा कि उनको अपॉइंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, यस। और अगर कोई कंप्लेनेंट है वो अपना प्लीडर करेगा अपॉइंट। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंप्लेनेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मतलब लाइक खुश ना हो, या ऐसा है हाँ, उसके पास कोई राइट है कि वो उसको कहे कि ये लाइक उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सके? ऐसा कोई नहीं, law? अपॉइंटमेंट को वो चैलेंज नहीं, ये चीज मैंने मेंशन की थी कि अगर कंप्लेनेंट चाहे तो वो अपना लॉयर रख सकता है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज्यादातर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कंप्लेनेंट का लॉयर वहां पर होता है। अब कंप्लेनेंट का लॉयर लेट से कि अब ये दोनों, हाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है या ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम ये कहें कि जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना ही नहीं चाहिए। हाँ, इन बहुत ही रेयर केसेस के अंदर आप अगर कुछ चीज प्रूव कर सके कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये फेवर कर रहे हैं डायरेक्टली एक्यूज्ड को, तो वहां पर भी फिर ये होता है कि उसको चेंज करके कोई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाता है। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बगैर, प्रोसिक्यूशन के बगैर क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। अब अगर आप एग्रीव्ड हैं, लेट्स से कि आपको लगता है कि भाई वो एविडेंस ठीक नहीं करवा रहा, वो क्या कर रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स ठीक नहीं कर रहा, वो कोर्ट को असिस्ट ठीक नहीं कर रहा, तो फिर कंप्लेनेंट अपना लॉयर हायर कर सकता है और वो लॉयर भी उसके साथ साथ काम कर सकता है। तो ये चीज होती है। सर तो वो जो प्लीडर है हमारा वो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर ही रहेगा, वो उसको सुनेगा? हाँ, देखिए जहां पर अथॉरिटी की हम बात करेंगे टेक्निकली स्पीकिंग, यहाँ पर अंडर रहने वाली बात नहीं है। अब जो फंक्शंस या पावर्स वो प्रोसिक्यूटर की हैं वो प्रोसिक्यूटर ही की होंगी। आप क्या करते हो कि लेट से अगर आपको फिर भी लगता है कि यार ये प्रोसिक्यूटर अभी भी ठीक नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्टली चले जाते हो कोर्ट के पास, ठीक है। फिर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो जी कि ये चीज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होनी चाहिए। आपने ये याद रखना है कि जो कोर्ट्स हैं दे आर नॉट स्पेक्टेटर्स, बल्कि पूरे के पूरे केस की जो मेन सुपरवाइजर है वो हमेशा कोर्ट ही होती है। अगर लेट से कि कोई चीज ओमिट कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नजर आ रहा है कि यार ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए,
फिर जो हमारे लॉयर्स होते हैं, प्राइवेट लॉयर्स, लॉयर फॉर द कंप्लेनेंट, वो फिर कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इनको ऑर्डर करें कि ये चीज इस तरीके से कर दें, तो फिर वो चीज आपकी ठीक हो जाती है। ये इसकी रेमेडी है। ओके, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था एफआईआर से रिलेटेड। अगर नेक्स्ट क्लासेस में एफआईआर से रिलेटेड है लेक्चर तो फिर मैं नहीं पूछती, बट आपने क्योंकि आप जिक्र पूछना किया था। चाहें तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई कैन आंसर, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हर एक स्पीकर का जो डोमेन है वो उसमें हो जाए। अगर आपने पूछना तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है। सर क्योंकि आपने जिक्र किया था एफआईआर का स्टार्ट में, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि सेकंड एफआईआर हमने काफी जगह पढ़ा है, सेकंड एफआईआर का मतलब कहीं पे ये होती है और कहीं पे नहीं होती। तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास जहाँ पे सेकंड एफआईआर अभी रिसेंटली हुई हो? नहीं, रिसेंटली नहीं हुई। 2019 में एक आई थिंक सुगरा बीबी केस है, वो मैंने अपने चैनल पे वो मेंशन किया भी था, मेरे माइंड से निकल गया। तो उसमें फिर ये है कि अब सेकंड एफआईआर किसी एक कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड नहीं होगी। अगर तो कुछ सर्कमस्टांसेस किसी और पार्टी ने बताने हैं कि नहीं ऐसे हुआ था, ठीक है, तो उसमें फिर वो ही जो जिमनियों के अंदर या 161 में ऐड हो जाएगा। या फिर जैसे क्रॉस एफआईआर करवानी होती है, ज्यादातर ये हर्ट केसेस में होते हैं, लड़ाई झगड़े में कोई एक पार्टी पहले चली जाती है मेडिकल करवाने, वो पहले एफआईआर करा देती है, दूसरी पार्टी को भी चोटें लगी होती हैं, मार तो दोनों को पड़ी है, तो फिर क्या होता है कि वहां पर क्रॉस वर्जन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी लिखी जाएगी उसको हमेशा मेंशन किया जाएगा क्रॉस वर्जन ऑफ एफआईआर नंबर फना फना फना। तो अभी ये सिस्टम हमारा ऐसे चल रहा है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर अभी जो आपने बताया ना 22A में जस्टिस ऑफ पीस की बात की ना आपने, तो सर उनकी क्या ड्यूटी होती है? मतलब अगर एफआईआर कोई, अब हम एफआईआर अगर पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा रहे ना, तो फिर हम तो पीस के पास जा सकते हैं, राइट? राइट। तो हम कंप्लेंट लिख के जाएंगे या किस तरह जाएंगे मतलब? अच्छा, हाँ, देखिए, दो चीजें होती है ना आपके पास रेमेडीज, एक एफआईआर केस होता है और एक कंप्लेंट केस होता है। आपके पास जो प्राइवेट कंप्लेंट का ऑप्शन है वो हमेशा है, वो है जस्टिस ऑफ पीस की भी मैं बात नहीं कर रहा। प्राइवेट कंप्लेंट ये है कि भाई जिसे आप इस्तगासा बोलते हैं, ठीक है, पुलिस आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करती, पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही तो आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही और आप कहते हो कि नहीं मैंने एफआईआर ही करवानी है ताकि पुलिस की हेल्प पहले दिन से मेरे साथ रहे, तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं, वहां पर पिटीशन हम लिखते हैं, पिटीशन अंडर सेक्शन 22A एंड 22B ऑफ सीआरपीसी, और इसको हम जाकर फाइल कर देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। तो बेसिकली ये जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। फिर क्या होता है कि वो पुलिस को भी थाने में से रिपोर्ट मंगवाते हैं कि भाई ये क्या मामला है, बताएं एफआईआर क्यों नहीं हो रही। फिर उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट आप एफआईआर लॉन्च करना चाह रहे होते हैं, उसको भी पार्टी बनाते हैं, उनको भी कोर्ट बुलाती है, फिर सुनती है, फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि एफआईआर इसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एफआईआर होनी चाहिए तो फिर वो लिख देते हैं कि apparently a cognizable offense has been made out or carried out, तो इस वजह से बेहतर होगा कि एफआईआर। क्वेश्चन है इतना आपकी हसाम आपकी आवाज कट रही है बेटा, आई कांट हियर यू। हसाम अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखते हैं, हम रीड कर लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि आपने ये इसके बारे में बताया कि एक्टर्सरिया और दूसरा मैंसरिया, ये दोनों चीज़ें अगर देखी जाए तो ये सेल्फ डिफेंस में आ जाती है, तो क्या सेल्फ डिफेंस फिर कैसे प्रूव होगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सेल्फ डिफेंस जो ऑफिशियल यानी कि पुलिस वाले या फिर कोई भी इन्फोर्समेंट में, वो उनका ही होगा या फिर एज अ सिविलियन या फिर एज अ पब्लिक या कोई भी कर सकता है? ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। अच्छा, जो सेल्फ डिफेंस है ना, ये इंशाल्लाह कल पूरा हमने टॉपिक पढ़ना है जनरल एक्सेप्शंस का। अभी शॉर्टली मैं आंसर करूंगा कि एक्टसरिया और मेंजरिया और चीज है और सेल्फ डिफेंस और चीज है, ठीक है।
अब सेल्फ डिफेंस, जब कोई बंदा लेट से कि सेल्फ डिफेंस में किसी को मारता है तो वो एक्टेसरिया भी है और मेंसरिया भी है, इंटेंशन भी है, लेकिन आपके पास एक एक्सक्यूज है कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो उसमें वो पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है 76 से 106 में, और खासकर जो सेल्फ डिफेंस है वो 96 से 106 सेक्शंस हैं पीपीसी के जो कि इसको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल ये कि ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट लिंब ऑफ क्वेश्चन वो प्रॉपर नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि आप किस एंगल से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, फिर मैं उसको प्रॉपरली आंसर करूंगा। सर जी क्वेश्चन है कि अगर हम किसी भी नाके पे पुलिस पे हमें पकड़ के ले जाती है, इट मींस आप देख लें मीरपुर में अभी बहुत सारा ये चला हुआ है कि बाइक के मतलब बहुत इश्यूज हैं, तो पकड़ के ले जाए बगैर किसी एफआईआर के अगर आपको पुलिस आप पे तशद्दुद करती है, मारती है, तो इसके लिए सर जी क्या होगा? देखिए ये अलाउड नहीं है। अच्छा, एक और चीज कि ये जो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, वो 54 जब आप देखेंगे ना, मैंने बताया था कि पुलिस की वाइड पावर्स हैं, सेक्शन 54 में ये चीज मेंशन्ड है। अब वहां पर वो पकड़ती कब है कि जहां पर आपके पास बाइक वगैरह की कॉपी नहीं है, अगर आप बाइक या गाड़ी पर है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक शक पैदा हो गया ना कि आप उस चीज के ऑनर नहीं है। या फिर अगर पुलिस आपसे आपके वेयर अबाउट्स पूछती है, अक्सर आपने देखा होगा वो सिर्फ नोट कर लेते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और या वो पूछ लेते हैं कि जी आप कहाँ जा रहे हैं। बाजुकात वो एड्रेस वगैरह भी आपसे पूछ लेते हैं, अपना एड्रेस भी बता दें, ठीक है, ताकि उनके रिकॉर्ड में आ जाए। बाजुकात वो आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे, आईडी कार्ड नहीं निकला तो फिर भी आपको वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब वहां पर गिरफ्तार तो वो कर सकते हैं शक की बुनियाद पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। तो ये होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन भी इसको बोल सकते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और इसके अलावा भी शक की बुनियाद पर भी वो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है कि भाई पता नहीं ये स्टोलन प्रॉपर्टी ना हो, पता नहीं ये वारदात करके ना आ रहे हो। तो अपने आप को जब पुलिस आपको रोकती है तो आपको एक्सप्लेन करना आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करें। अब आ जाए इसकी दूसरी तरफ, अगर वो मिसबिहेव करते हैं वो गलत है, और पुलिस जब आपको रोकेगी तो उससे पहले वो बताएगी बाकायदा, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो बताएंगे कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं किस थाने से हूँ, और मुझे आपके ऊपर क्या शक है, मैं किस वजह से आपको रोक रहा हूँ, और ये आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं कि भाई आप रोक क्यों रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है इवन कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी ये रोक के खड़े हो जाएंगे, बताएंगे नहीं। ठीक है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्यों रोका है, वजह तो बताएं। तो उसके बाद मारना पीटना तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और जब तक एफआईआर, इवन कि एफआईआर हो भी जाए तो भी ये जो टॉर्चर है ये टॉर्चर परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर तो अगर एफआईआर नहीं हुई और फिर भी कोई बंदा मार रहा है आपको तो वो तो बिल्कुल ही एक इलीगल एक्ट आ जाएगा। अब इसकी डिफरेंट रेमेडीज अवेल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इनके खिलाफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एफआईआर हो गई है और आपका केस भी चल रहा है तो आप जब मैजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो वहां पर आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें इशू ये है कि प्रूफ नहीं होता कोई भी, वो मारते इस तरीके से हैं। ठीक है, तो जब प्रूफ नहीं होता तो वो डिनाई कर देते हैं जी कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी आपने जो बताया मैनसरिया में कि एक बंदा नॉलेज है और उसके ऊपर लायबिलिटी है, जैसे कि आपने मिसाल दी कि एक बंदा डूब रहा है और दूसरा बंदा उसको देख रहा है, तो जो देखने वाला होता है वो कुछ बता नहीं सकता, तो वो नॉलेज में है, उसके बाद उसके ऊपर लायबिलिटी है। मैं आपको ना लूज कर रहा हूँ, सॉरी दोबारा बोलिएगा सर। जैसे आपने बताया ना मैनसरिया में एक बंदा नॉलेज में होता है, नॉलेज होती है तो उसके ऊपर लायबिलिटी चार्ज होती है। हाँ। तो मेरे लाइफ में एक केस हुआ था, मेरे दोस्त के दोस्त है। तो कराची में एक डकैती हुई थी, उस डकैती में मोबाइल चोरी हुई थी और दूसरे सामान भी चोरी हुआ था। और वो मोबाइल जो थी वो आकर दूसरे जिले में आता, वो आकर एक जो मोबाइल फोन शॉपर होते हैं उसके पास आ गई, तो होते हैं। और उस बंदे ने क्या किया कि वो मोबाइल जो है उसका नहीं, आपकी आवाज फिर कट गई है।
ऐसा पॉसिबल है कि आप इसको क्वेश्चन को अपना रिकॉर्ड करवा दें ऑर्गेनाइजर को, ठीक है, तो वो मेरे तक पहुंचा देंगे, तो फिर मैं इसको आंसर कर दूंगा आराम से। ठीक है सर। हाँ, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि वो प्रोपोजिशन लंबी है, बीच में वो लूज हो जाएगा, तो फिर वो फायदा नहीं है, आप बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, आई थिंक ओके सर, आई थिंक ठीक है। ओके, तो सर फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन, एंड थैंक यू so much for your time and expertise, and thanks to all participants for joining us. So see you tomorrow class. Allah Hafiz, signing इंशाल्लाह। आप out. सब लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू।